Welcome back to Ever News TV and I'm Megha Verma. Let's have a look on a special story. The country's capital Delhi experienced the spiritual and cultural grandeur of Raghukul Nayak Shri Ram Leela for 2 days. This extraordinary presentation proved to be a wonderful experience for everyone. Many eminent personalities from the country and the abroad were present to witness the grand presentation of Raghukul Nayak Shri Ram at Kamani Auditorium under the aegis of International Ram Leela Festival Association. During this, children from schools of Delhi NCR beautifully amalgamated acting art and modern technology. Many dignitaries including Joint Commissioner of Delhi Police Rajneesh Gupta, Secretary of NRI Association, UK Chapter Dev Tyagi, Sunil Dutt of America, well-known music artist Shankar Sahani, founder of Vishwa Ramayan Kendra Ajay Bhai, Nanne Abhinav Chaturvedi of Doordarshan serial Hum Log, Deputy Secretary in the Ministry of Commerce and Industry A.M. Kumar were present to witness the first show of this grand presentation. When Dr. Ved Tandon, President of International Ram Leela Festival Association, called this show as a Pathya of Ram Leela, first Pathotsav in Ayodhya. The auditorium full of spectators resounded with thunderous applause. Despite the adverse weather, the cultural-loving spectators were present in the auditorium, gave their full love and support to the child artists. Justice Brijesh Sethi, Justice Chandrasekhar, Justice Sudhir Jain, Judge Ram Kapoor, Supreme Court Advocate and former Registrar of National Human Rights O.P. Vyas, Advocate Rohit Pandey, Secretary Supreme Court Bar Association, Ganesh Prasad Mishra, Sevanyas President, Dr. Rakesh Mishra and famous social worker Satya Bhushan Jain, DRDO Senior Scientist Dr. N.K. Chaudhary and Dr. T.N. Upadhyay, and Delhi State Science Teacher Force officials represented by Educationist Shailendra Kumar Saraswat graced the event with their dignified presence. Let us tell you that the program coordinator Dr. Vandana Tandon, overwhelmed by the unexpected success of all three shows, attributed it to the grace of Lord Sri Ram, the hard work of the child actors and the entire team. बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद आ गया। ये तो बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है और बहुत ज़रूरी बात है। ऐसे आयोजन तो हमारे देशभक्ति के लिए भी, हमारे देश के लिए भी, जागरूकता पैदा करने के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं इनको बहुत बहुत टंडन साहब का जो इनिशिएटिव है कई सालों से कर रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहेंगे? टंडन साहब के लिए तो मैं क्या बोलूँ, शुभ ही नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है और इनके साथ में हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। बहुत मतलब हम विकासपुरी में भी बहुत कार्यक्रम करते रहे हमेशा। उनके पिताजी से भी मेरे संपर्क थे और काफ़ी मदद अच्छा, इन्होंने शिक्षा के माध्यम में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बना आगे बढ़ाया है। देश सेवा में बहुत बड़ा योगदान है इनका। मैं मानता हूँ बच्चों और बहुत सारे विदेशी सेनानी, उन्होंने भी हजारों की संख्या में इन बच्चों की अद्भुत लीला को देखा। उसके बाद कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थान, जहाँ के प्रमुख हैं गीता मनीषी, जो वर्ल्ड फेम के गीता के को प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। उनकी पावन कुरुक्षेत्र की नगरी में जहाँ श्री कृष्ण जी ने गीता जी का संदेश दिया था, उस नगरी में हमने 10 दिन की भी लीला की, फिर दोबारा 3 दिन की और वहाँ बहुत कुरुक्षेत्र और हरियाणा के लोगों ने बड़ा सराहा। उसके बाद लाल किले में हमने 2 बार मंचन किया संपूर्ण रामायण का। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें हमारे देशवासियों का स्नेह मिल रहा है। आज देखिए, जय हिंद, नेताजी सुभाष पूरा संगठन है, तो मजबूत संगठन, उसके इतने बड़े बड़े हमारे लोग आशीर्वाद देने इस लीला में बच्चों को आए हैं। और जो आपने क्वेश्चन किया कि प्रेरणा कैसे मिली, तो मैं ये बता दूं कि 2019 में
माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी द्वारका के मेला के दशहरे वाले दिन मंचन में आए थे और उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला और उनकी ही प्रेरणा से 2020 में हमने अयोध्या से इस कारवां को शुरू किया, जो अभी एंडलेस है, क्योंकि ना केवल हमने देश में सभी प्रदेशों में रामलीला करानी है, बल्कि विश्व के जिन भी स्थानों पर हमें मौका मिला वो सब जगह हमारे बच्चे, स्कूली बच्चे जाएंगे। और सबसे खास बात यह कि अगर हम किसी गुरुकुल में रामलीला करा रहे हैं, जैसे हमने प्रभात आश्रम में कराई, वहाँ बहुत बड़ा गुरुकुल है, तो उनके बच्चों को भी हम इन्वॉल्व करते हैं। ज्ञानानंद जी के यहाँ बहुत बड़ा गुरुकुल है, उनके बच्चों को भी हमने इन्वॉल्व किया, उनके बच्चे और स्कूली बच्चे मिलकर रामलीला कर रहे हैं। और ये जरूरी भी है कि बच्चों में अपने प्राचीन संस्कार जो कि लुप्त होते जा रहे हैं, बच्चे बड़ी तेज़ी से हमारे दूसरी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ना हम अपने जो इतने महत्वपूर्ण हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, गीता, उनकी तरफ बच्चों का रुझान करें। और आज आप देख रहे हैं कि इसमें 4th क्लास से, 4थी क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे हैं। सिर्फ 2 बच्चे जो पास आउट होके, एक फर्स्ट ईयर में, एक सेकेंड ईयर में कॉलेज में, वो बच्चे भी बिल्कुल नहीं छोड़ रहे लीला। वो कहते नहीं, हम आपके साथ रहेंगे। एक बच्चा उस पर रावण का रोल कर रहा है और एक बच्ची और डांसर है बहुत अच्छी। वो बच्चे ऐसे जुड़ गए हैं और पेरेंट्स इतने उनका खुश है, क्योंकि जहाँ भी लीला होती है पेरेंट्स साथ जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं सभी को जो आए हुए अतिथि हैं उनको धन्यवाद करूँगा कि बच्चों का लगातार ये 3 शो हैं, लगातार पूरे 3 शो फुल हैं। और अभी तीसरा शो और हमारे यहाँ जो जस्टिस हैं, लगातार हाई कोर्ट के जस्टिस हमारे रामलीला में बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कल भी हमारे जॉइंट CP आए थे जगदीश गुप्ता जी, कलाकार आए थे हम लोग के नन्हे जी, अजय भाई जी जो विश्व प्रसिद्ध कथावाचक हुआ थे। आज जस्टिस चंद्रशेखर जी, जज राज कपूर जी, उनकी फैमिली और भी बहुत सारे लोग जो दिल्ली के एजुकेशन में, रीढ़ की हड्डी एजुकेशन के साइंस फॉर्म की सारी टीम, एक्स डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, सभी आज बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो एजुकेशन से, हर फील्ड से बच्चों को इस रामलीला का समर्थन। है और मैं समझता हूँ ये हमारी बच्ची को आगे बढ़ाते जा रही है और ये डिजर्व ऑल द थिंग्स। मैं कहना चाहूँगा कि चंदन साहब के जो प्रयास हैं खाली इंडिया के ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इसका विस्तार कर रहे हैं। राम की जो कृपा है अब पूरे देश में बरस रही है। हमारी सनातन संस्कृति बहुत तेज़ी से जो हम लोग भूल चुके थे अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी कदम में हमारे ये स्कूली बच्चे देश के विभिन्न प्रदेशों में उन्होंने अपना रामायण मंचन दिया। अयोध्या में, ओरछा में, ऋषिकेश में, कुरुक्षेत्र में, लाल किले में, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, चित्रकूट, ऐसी जगहें जहाँ पर हमें न केवल रामायण का मंचन किया बच्चों का, वहाँ हमें आशीर्वाद मिला सकता। हमने चित्रकूट पे राम भद्राचार्य जी के यहाँ रामायण केंद्र हाल है, उसमें 3 दिन का संपूर्ण रामायण का मंचन किया। राम भद्राचार्य जी जगतगुरु जो है हमारे, वो 3 दिन हमारे साथ थे और बहुत आशीर्वाद राम कृपा है अब पूरे देश में बरसा है। हमारी सनातन संस्कृति बहुत तेज़ी से जो हम लोग भूल चुके थे उसके अंदर बढ़ रही है। और इसी कदम में हमारे ये स्कूली बच्चे देश के विभिन्न प्रदेशों में उन्होंने अपना रामायण मंचन दिया। ओरछा में, ऋषिकेश में, कुरुक्षेत्र में, लाल किले में, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, चित्रकूट, ऐसी जगहें जहाँ पर हमें रामायण का मंचन के बच्चों का वहाँ हमें आशीर्वाद मिला
आनंद जी के यहाँ रामायण केंद्र भाग है, उसमें रामायण का गया आचार्य जी जो है हमारे हमारे साथ थे। आपको प्रेरणा सर किसने दी सर्वप्रथम 2019 में? प्रेरणा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि जो संतों का आशीर्वाद वो कैसे लगातार मिला, क्योंकि हमने उसके बाद ऋषिकेश पे गंगा तट पर गए, जहाँ स्वामी चिदानंद जी के आश्रम प्रभात आश्रम में 10 दिन की लीला और स्वामी जी खुद साथ थे। पूरी हमारे उत्तराखंड की सरकार, उनके मिनिस्टर आते हैं, बच्चों को, बहुत सारे विदेशी सेनानी, उन्होंने भी हजारों की संख्या में इन बच्चों की अद्भुत लीला को देखा। उसके बाद कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थान, जहाँ के प्रमुख हैं गीता मनीषी, जो वर्ल्ड फेम के गीता के को प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, उनके पावन कुरुक्षेत्र की नगरी में जहाँ श्री कृष्ण जी ने गीता जी का संदेश दिया था, उस नगरी में हमने 10 दिन की भी लीला की, फिर दोबारा 3 दिन की थी, और वहाँ बहुत कुरुक्षेत्र और हरियाणा के लोगों ने बड़ा सराहा। उसके बाद लाल किले में हमने 2 बार मंचन किया संपूर्ण रामायण का। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें हमारे देशवासियों का स्नेह मिल रहा है। आज देखिए जय हिंद, नेताजी सुभाष पूरा संगठन है, इतना मजबूत संगठन है, उसके इतने बड़े बड़े हमारे लोग आशीर्वाद देने इस लीला में बच्चों को आए हैं। और जो आपने क्वेश्चन किया कि प्रेरणा कैसे मिली, तो मैं ये बता दूं कि 2019 में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी द्वारका के लीला के दशहरे वाले दिन मंचन में आए थे और उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। और उनकी ही प्रेरणा से 2020 में हमने अयोध्या से इस कारवां को शुरू किया, जो अभी एंडलेस है, क्योंकि न केवल हमने देश में सभी प्रदेशों में रामलीला करानी है, बल्कि विश्व के जिन भी स्थानों पर हमें मौका मिला वो सब जगह हमारे बच्चे, स्कूली बच्चे जाएंगे। और सबसे खास बात यह कि अगर हम किसी गुरुकुल में रामलीला करा रहे हैं, जैसे हमने प्रभात आश्रम में कराई, वहाँ बहुत बड़ा गुरुकुल है, तो उनके बच्चों को भी हम इन्वॉल्व करते हैं। ज्ञानानंद जी के यहाँ बहुत बड़ा गुरुकुल है, उनके बच्चों को भी हमने इन्वॉल्व किया। गुरुकुल के बच्चे और स्कूली बच्चे मिलकर रामलीला कर रहे हैं। और ये जरूरी भी है कि बच्चों में अपने प्राचीन संस्कार जो कि लुप्त होते जा रहे हैं, बच्चे बड़ी तेज़ी से हमारे दूसरी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ना हम अपने जो इतने महत्वपूर्ण हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, गीता, उनकी तरफ बच्चों का रुझान करें। और आज आप देख रहे हैं कि इसमें 4th क्लास, 4th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे हैं। सिर्फ 2 बच्चे जो पास आउट होके, एक फर्स्ट ईयर में, एक सेकेंड ईयर में कॉलेज में, वो बच्चे भी बिल्कुल नहीं छोड़ रहे लीला। वो कहते नहीं हम आपके साथ रहेंगे। एक बच्चा उस पर रावण का रोल कर रहा है और एक बच्ची और डांसर है बहुत अच्छी। वो बच्चे ऐसे जुड़ गए हैं और पेरेंट्स इतने उनके खुश हैं कि जहाँ भी लीला होती है पेरेंट्स साथ जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं सभी को जो आए हुए अतिथि हैं उनको धन्यवाद करूँगा कि बच्चों का लगातार ये 3 शो है, लगातार पूरे तीनों शो फुल है। और अभी तीसरा शो, और हमारे यहाँ जो जस्टिस है, लगातार हाई कोर्ट के जस्टिस हमारे रामलीला में बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कल भी हमारे जॉइंट CP आए थे, रजनीश गुप्ता जी, कलाकार आए थे हम लोग के, नन्हे जी, अजय भाई जी जो विश्व प्रसिद्ध कथावाचक वो आए थे। आज जस्टिस चंद्रशेखर जी, जज राज कपूर जी, उनकी फैमिली और भी बहुत सारे लोग जो दिल्ली के एजुकेशन में रीढ़ की हड्डी एजुकेशन के साइंस फॉर्म की सारी टीम, एक्स डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, सभी आज बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो एजुकेशन से हर फील्ड से बच्चों को इस रामलीला का समर्थन। सर आज के विषय से अलग एक हटकर एक मेरा क्वेश्चन था, जो अभी प्राइवेट स्कूल को LG साहब ने दिया है आपके इनिशिएटिव से, थोड़ा सा उस विषय पे भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए दिल्ली में ऐसे स्कूल भी हैं जो बहुत छोटी जगह पे 200 गज पे, 300, 400, 500 गज पे चल रहे हैं। अपनी पूंजी से उन्होंने
छोटे एरिया में स्कूल स्टार्ट किए और वहाँ किसी में 300 बच्चा है, किसी में 400 है, 500 है। उन स्कूलों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी रिकॉग्निशन में, उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, एडमिशन नहीं हो रही थी। तो उन बच्चों की, पेरेंट्स की और स्कूल की आवाज़ हमने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली उनको उठाई और उन्हीं की वजह से हमने एक संवाद कार्यक्रम रखा, उसमें करीब 400 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद ये हमें एलजी साहब ने बहुत अच्छी राहत दी। जो ऐसे 150 स्कूल हैं जो अपनी सारी पूंजी लगाकर वहाँ के गरीब बच्चों को पब्लिक स्कूल की अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उन पे जो तलवार लटकी हुई थी वो एलजी साहब ने दी। That's all for now. For more updates, subscribe the Even News TV. Thank you.